इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पेंटर बाय जॉन एशबरी। ये पोएम आपके एडीपी सेमेस्टर 2 लिटरेचर में शामिल है। और इस पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये मॉडर्न पोएट है, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, because the poem is full of images and the poem is symbolic. So this video contains two parts. The first part deals with the introduction of the poem, and then we will go through the explanation of the stanzas. So let's start. The painter is sketched with orthodoxical as well as innovative artistic techniques and subjects. The poet enjoys painting the sea's portrait while other artists live in buildings, paint their buildings and praise their tall buildings. The poem outshines symbolic beauty. So the situation is that the scene is coastal. It is a coastal scene, and there are two type of people living over that seaside. One is the poet who wants to paint the sea portrait, and the others are the people who are living in the buildings, and they are confined themselves to the buildings only, and they are painting what they see from the tall buildings, and the poet is standing exposed to the sea. The poem opens with a statement of the painter who is up and ready to portray the sea. Its theme deals with the confrontation between conventional and static traditional agents with innovations and experimentation. The poet or the painter stands as a bridge between the two. It means these two extremes, which we have discussed in the previous slide, that one group is of those people who are living in the buildings and they are conventional and traditional, and the poet, and the second group, or the poet is alone and he is the agent of innovation and experimentation. कि वो जो पेंटर है वो क्या करना चाह रहा है, इनोवेशन करना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहा है अपनी पेंटिंग के ज़रिए, और जो लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, जो ऑन लुकर्स हैं, वो सारे कौन हैं, वो बिल्डिंग्स में रहते हैं और इंतहाई कन्वेंशनल लोग हैं जो किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते. द पोइट और द पेंटर स्टैंड्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू. द पोइट वांट्स टू एक्सप्लोर द अनडिस्कवर्ड डेप्थ्स ऑफ लाइफ, but the orthodox are living in the walled buildings. They want to live inside their ruined buildings and do not let others cross the doorway of their old buildings. Now this is very interesting, that the people who are living in the buildings, their buildings have collapsed, their buildings are devastated and ruined, but they are satisfied with those buildings. They are not ready to see light, they are not ready to see something new. Allegory. Allegory means that the story or the poem runs on two levels. Simply, this is the story of a painter who wants to paint, and but he is confused about the topics or the subjects of his paintings. But at the deeper level, the poem represents, or the painter represents, those people who want to break the norms, who want to challenge the society, who want to change and bring something new in the society, but they are criticized. They are criticized by those people who are stagnant and static, who are traditional, and they sometimes fails to bring change, though they can, and the change also brings betterment in the society. Setting and imagery. The particular poem is sketched in a coastal setting. जैसे आपको बार बार बता रहे हैं कि सी के शोर पे है, तो वो कोस्टल ही हुआ ना सेटिंग. द images used in this poem are concrete and vivid. Sea, buildings, canvas, brush and child's prayer are some images which not only beautify the poem but also make the reader draw his own painting in between the building and the deep sea. So the images make a clear picture in our mind. What are the images? Sea, buildings, canvas, brush, child's prayer. ये सारे वो इमेजेस हैं जो पोएट इस्तेमाल कर रहा है और पोएम को और भी एलैबोरेट कर रहा है. सी जो है वो सिंबलाइज करता है लाइफ को, डेप्थ्स ऑफ लाइफ को.
बिल्डिंग्स इंसान के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को सिंबलाइज करता है जो इंसान ने खुद साख्ता बुत तराशे हुए हैं जिनसे वो बाहर नहीं आना चाहता। कैनवस वो इंसान की होप्स हैं, कैनवस वो डिज़ायर्स है जो वो फुलफिल करना चाह रहा है, और ब्रश वो व्हीकल है जिसके ज़रिए वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाह रहा है। और चाइल्ड्स प्रेयर वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं जो इंसान अपने दिल में तो सोचता है लेकिन वो पूरी नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Sitting between the sea and the buildings, he enjoyed painting the sea's portrait. But just as children imagine a prayer is merely silence. So the poem starts with a scene that the painter is sitting, and the painter is sitting where? Between the sea and the buildings. So it means that the buildings are on the seashore. And he enjoyed painting the sea's portrait. यहाँ पोइट ने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, गोया वो पेंटिंग कर चुका है और उसने बहुत इन्जॉय किया है पेंटिंग को बनाने में। लेकिन उसके साथ ही अगला कंजंक्शन देखें, बट जस्ट एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर इज मेयरली साइलेंस, कि उसने पेंटिंग कैसे बनाई है, एक बच्चे की दुआ की मानंद। जैसे बच्चा दुआ करता है आंखें बंद करके और चाहता है कि ये हो जाए और वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा होता, तो इसी तरह पेंटर भी क्या कर रहा है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि ही इज़ पेंटिंग, बट एक्चुअली इज़ मेयरली साइलेंस, लेकिन वहाँ पर खामोशी है। ही एक्सपेक्टेड हिज सब्जेक्ट टू रश अप द सैंड एंड सीजिंग अ ब्रश प्लास्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस। नाउ लुक, द पोएट हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड दैट द पेंटर इज थिंकिंग और प्रेइंग जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो बच्चे जैसे बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और बहुत सारे अनरियलिस्टिक होते हैं जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होते। तो इसी तरह अब जो पेंटर है वो क्या चाह रहा है, उसे पता है कि उसने एक बहुत ही वास्ट और मुश्किल सब्जेक्ट चुना है और बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट चुना है, जो टॉपिक चुना है पेंटिंग के लिए। तो वो चाहता है कि उसका सब्जेक्ट यानी सी खुद ही उठे, रश अप, तेज़ी से उठे, रश अप द सैंड, और सीजिंग द ब्रश, खुद ही वो ब्रश को पकड़ ले और प्लास्टर इट्स ओन पोर्ट्रेट, और ख़ुद ही चिपका दे अपनी पोर्ट्रेट को कैनवस पे। अब यहाँ पर वो जो पेंटर है वो समंदर को भी एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे देख रहा है, यानी उसको पर्सोनीफाई हम समझें कि पेंटर इसको पर्सोनीफाई करके देख रहा है कि वो ऐसा आए, चलता हुआ आए और आकर खुद ही इसके ऊपर चिपक जाए। तो ये एक चाइल्ड्स प्रेयर तो हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस पूरी पोएम में जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी है वो इसके कंजंक्शंस हैं, जो कनेक्टर्स पोएट यूज़ कर रहा है। सो देयर वाज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवस। हालांकि जब पोएम स्टार्ट हुई थी तो पोएट कह रहा था कि ही इंजॉयड पेंटिंग, लेकिन बाद में उसने डिज़ायर की कि खुद ही सी आकर पेंट हो जाए उसके कैनवस पे, जो कि नहीं हो सकता। तो सो देयर वाज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवस, लिहाजा उसके कैनवस पर कोई पेंट नहीं है। अनटिल द पीपल हु लिव्ड इन बिल्डिंग्स पुट हिम टू वर्क, कि वो लोग जो बिल्डिंग्स में हैं और हु आर पीपिंग थ्रू देयर विंडोज, दे आस्क हिम ट्राई यूजिंग द ब्रश एज अ मीन्स टू एज एन एंड, कि सोचने से थिंक ओवर करने से आप पेंटिंग नहीं कर लेंगे, यू शुड यूज योर ब्रश। और ब्रश को कैसे इस्तेमाल करना है, एज अ मीन्स टू एन एंड, एक सोर्स के तौर पे, ताकि वो किसी काम को एंड कर सके। सिलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट सम लेस एंग्री एंड लार्ज एंड मोर सब्जेक्ट टू पेंटर्स मूड। दे एडवाइज हिम डोंट बी आइडियलिस्टिक, डोंट बी सो imaginative, don't be so rebellious, rather simplify your choice, so choose a topic that is less angry। एंग्री से यहाँ डायनामिक, क्योंकि सी एक डायनामिक एंटिटी है, तो वो उसको कह रहे हैं कि आप एक पीसफुल, खामोश, लेस एंग्री टॉपिक चुनो और लेस वास्ट टॉपिक चुनो, और वो कैसा हो, सब्जेक्ट कहते हैं माताहत होना, फॉलो करना, जो पेंटर के मूड को फॉलो करें। आपको पता है ना कि पेंटिंग्स हमें कौन सी जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, जो ब्यूटी को पोर्ट्रे करें, पीस को पोर्ट्रे करें, सिरेनिटी को पोर्ट्रे करें, और परहैप्स टू अ प्रेयर।
या फिर तुम्हारी दुआ के मुताबिक हो। अब एक नई कन्फ्यूजन राइज होती है इस थर्ड स्टैंजा में कि पीपल उसको कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ चाह रहा है। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि हाउ कुड एक्सप्लेन टू दैम हिज प्रेयर, कि वो कैसे अपने प्रेयर को या अपनी दुआ को या अपने डिज़ायर को एक्सप्लेन करे। दैट नेचर नॉट आर्ट माइट डिजर्व द कैनवस, दिस इज हिज डिज़ायर, this is the central point of the poem around which the whole development of thoughts revolve. He doesn't want to do the painting that is only art for art's sake. He wants something more real, more natural, more dynamic. इसलिए वो क्या कहते हैं कि नेचर माइट डिजर्व द कैनवस, डिजर्व वैसे कहते हैं कब्जा कर लेना, अपसेट कर लेना, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैनवस को फिल कर देना, कैनवस को पेंट कर देना। कि नेचर तो कैनवस उसके को पेंट कर सकती है, लेकिन आर्ट नहीं, यानी वो टिपिकल रास्ते पर नहीं चलेगा आर्ट के, उन्हीं लाइनों और लकीरों को नहीं खींचेगा जो उसके सराउंडिंग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स कर रहे हैं। सो ही चोज हिज वाइफ फॉर अ न्यू सब्जेक्ट। हमने पहले पढ़ा कि पेंटर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, वो कंफ्यूज है, तो अब वो एक नया टॉपिक चुनता है जो कि उसकी वाइफ है। मेकिंग हर वास्ट लाइक रूइंड बिल्डिंग्स, और वो उस टॉपिक को वास्ट करता है और सोचता है उसको, उसके हर एंगल को सोचता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोचता है। जैसे वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द, वैसे उसको वास्ट लेवल पे सोचता है। As if forgetting itself, the portrait had expressed itself without a blush. Again, the same desire, the same prayer. कि portrait had expressed itself without a brush. कि he actually doesn't want to use his brush. Brush stands for tradition, conventions, constrictions, restrictions. कि वो नहीं चाहता कि ब्रश से पेंटिंग हो, बल्कि वो चाहता है कि पेंटिंग इटसेल्फ एक्सप्रेस करे अपने आप को कैनवस पर। स्लाइटली इनकरेज्ड, फिर जब वो बहुत सारा सोच लेता है, वेवर कर लेता है डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान, तो एट लास्ट यानी फोर्थ स्टैंजा में जाके पोएट मेक्स द पेंटर पिक अप हिज ब्रश इन द सी। डिप किस में करता है? इन द सी, समंदर में। यानी उसके पास कोई कलर्स नहीं है जिसमें उसने डिप करना है, वो रियलिटी से पेंट कर रहा है, तो इसलिए वो सी में अपना ब्रश डिप करता है। मर्मरिंग अ हार्ट फेल्ट प्रेयर, फिर दुआ करता है दिल में। माई सोल व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट लेट इट बी यू हु रैक्स द कैनवस। उसने पहली पोएम तो अभी पेंट नहीं की, तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट पता नहीं पोएट क्यों कह रहा है, वो अभी इमेजिनेशन में ही पेंट कर रहा है चीज़ों को। तो अब माई सोल जो है ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकती है। एक तो वो तीसरा टॉपिक हो सकता है जो कि उसकी सोल है जिसको वो पेंट करना चाह रहा है, यानी वो अब अपने इनर सेल्फ को पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि वो अंदर से क्या चाहता है, वो अंदर से कैसा है, वो क्यों लोगों के साथ मैच नहीं हो रहा, वो क्यों लोगों से कन्विंस नहीं हो रहा। सेकेंडली वो सी को भी माई सोल कह सकता है सिम्बॉलिकली, कि सी चूँकि लाइफ को सिम्बलाइज कर रहा है, सी उसके बहुत हार्ट के करीब है, उसका लव्ड वन टॉपिक है। तो वो कह रहा है कि जब मैं अपनी सोल को यानी दोबारा पेंट करूँगा सी को, तो लेट इट बी यू हु रैक्स द कैनवस, तो यू आर सपोज टू रैक दिस कैनवस। अब वो इतनी बम्बास्टिक, इतनी डायनामिक तस्वीर बनाएगा कि कैनवस उसका रैक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ऊपर भी उसने पेंट का वर्ड नहीं यूज़ किया कैनवस के लिए, उसने यूजर्प एक लफ्ज़, मैंने आपको कहा था कासिम को कहते हैं कब्जा करने को, यूजर्प का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर थ्रू द बिल्डिंग्स। अब लाइक वाइल्ड फायर सिमिली है, आपने बार बार देखा है कि जो कंपैरिजन लाइक से शुरू हो वो तशबीह या सिमिली होता है, या बार बार पढ़ चुके हैं कि ये जो न्यूज़ है कि द राइटर हैज़ कन्वर्टेड टू हिज प्रीवियस टॉपिक अगेन, दैट इज सी। वाइल्ड फायर की तरह फैल गई सारी बिल्डिंग्स में, और ही हैड गॉन बैक टू द सी फॉर हिज सब्जेक्ट, कि वो वापस उसी टॉपिक पे चला गया जो उसके दिल के करीब है, जो वो पेंट करना चाह रहा था। इमेजिन अ पेंटर क्रूसिफाइड बाय हिज सब्जेक्ट।
Now the poet gets a little bit sympathetic towards the painter. Actually, the painter is himself the poet. यानी वो कह रहा है कि पेंटर जो कि नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविस्ट है, वो क्रूसीफाई हो गया, स्लीप पर चढ़ गया बाय हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से, यानी अपने टॉपिक से। उसने इतना बड़ा टॉपिक चुना, या वो इतना बड़ा चेंज लाना चाह रहा है, वो इतना डिफरेंट काम करना चाह रहा है कि वो कर ही नहीं पा रहा, और उसकी ख्वाहिश जो है वो क्रूसीफाई हो गई, वो ख़त्म हो गई, सेक्रीफाइस हो गई। और पोएट हमें कह रहा है इमेजिन करें उस तकलीफ़ को कि एक पेंटर जो है या एक इनोवेटर जो है वो जब अपना काम नहीं कर सकता। टू एग्जॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, वेरी पैथेटिक, वेरी पेनफुल, कि लोगों के क्रिटिसिज्म ने, लोगों की ओपिनियंस ने उसको इतना थका दिया है कि वो अपना ब्रश उठा ही नहीं सक रहा। लेकिन हमने मज़े की बात यह कि हमने पहले भी पोएम में देखा कि ब्रश तो एक्चुअली वो उठा ही नहीं रहा था, अभी तो वो सिर्फ दिमाग में टू बी और नॉट टू बी वाले कन्फ्यूजन का शिकार है कि शुड ही मूव ऑन टू द ट्रेडिशनल पाथ और शुड ही टेक अ डिफरेंट रोड। ये पोएम जो है ना, हमें एक और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह इसी सेमेस्टर में। उसकी एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें वो बताता है, वो भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार है पोएट, लेकिन वो इस पेंटर से ज़्यादा करेजियस और बोल्ड है। और वो उस रोड, उसके सामने दो रोड्स हैं और उसने वो चल एक रास्ते पर जाना है, वो सोच रहा है कि उस रास्ते पर चले जिस पर ज़्यादा लोग चलते हैं, या उस रास्ते पर चले जो लेस वॉकड ओवर है, जो जहाँ पर लोग नहीं जाते। तो फिर वो उस रोड पर जाता है जहाँ पर लोग नहीं जाते, लेकिन वो बड़ी सेकंड्स में डिसाइड कर लेता है। लेकिन पेंटर जो है शायद वो मतलब ही लैक्स सो मच करेज टू मेक अ क्विक डिसीजन, तो वो अभी टू बी और नॉट टू बी के कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है। ही परवोक्ड सम आर्टिस्ट लीनिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स टू मिलिशियस mirth, mirth कहते हैं मजाक को, मिलिशियस कहते हैं विंडिक्टिव, तकलीफ दे, गुस्से से भरी हुई। तो उसकी इस इनएक्टिविटी ने, उसके इस कन्फ्यूजन ने बिल्डिंग में जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनके मर्द को या मजाक को प्रोवोक कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया है, और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। We haven't a prayer now of putting ourselves on canvas or getting the sea to sit for a portrait। और वो इन्वर्टेड कॉमास में उनकी स्टेटमेंट भी बता रहा है पोएट कि वो उस पोएट के मजाक कैसे उड़ा रहे हैं कि जो तुम्हारी प्रेयर्स हैं दो, कि सी खुद ही आकर कैनवस पे चिपक जाए, या तस्वीर जो है वो खुद ही आकर बैठ जाए कैनवस पे, या हम अपने आप को कैनवस पे चिपका दें। तो हमारी ऐसी रिडिकुलस प्रेयर्स नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अदर्स डिक्लेयर्ड, और कुछ लोगों ने कहा कि इट सेल्फ पोर्ट्रेट, के पोएट तो अपनी तस्वीर पेंट करना चाह रहा है, पेंटर जो है। फाइनली ऑल इंडिकेशंस ऑफ अ सब्जेक्ट बिगेन टू फेड। This is the unfortunate ending of this poem or the poet's artistic qualities or abilities। कि इतने क्रिटिसिज्म के बाद क्या हुआ कि जो उसने इमेजिनेशन, आपको पता है ना कि आर्टिस्ट, पोइट्री है, पेंटिंग है, ये सारे जो है दे कम अपॉन अ पोएट लाइक ए शावर। तो वो उसकी जो इंडिकेशंस थी वो सारी फेड होना शुरू हो गई, धुंधलाना शुरू हो गई। जो उसने इमेजिन किया हुआ था, जो विजुलाइज किया हुआ था, जो वो कैनवस पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा था, वो सब कुछ फेड होना शुरू हो गया। और लीविंग द कैनवस परफेक्टली वाइट, और एंड क्या है, वाइट अनटच्ड कैनवस। ही पुट डाउन द ब्रश, एट वंस अ हाउल दैट वाज आल्सो अ प्रेयर अरोज फ्रॉम द ओवरक्राउडेड बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग से एक हाउलिंग, बहुत ही हॉरिबल नॉइजी आवाज़ें आना शुरू हो गई, और वो भी शायद पोएट कहता है कि वो भी शायद प्रेयर ही है। इसकी प्रेयर साइलेंट थी पेंटर की, लेकिन जो आर्टिस्ट बिल्डिंग में रह रहे हैं उनकी प्रेयर जो है वो हाउलिंग है, वो राती हुई है, रोरिंग है, और बिल्डिंग्स ओवर क्राउडेड हैं। ये जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट है पोएम में पेंटर का और उन आर्टिस्ट का, वो बड़ा ही मीनिंगफुल है कि बिल्डिंग्स तो ओवर क्राउडेड है, यानी ट्रेडिशंस पर चलने वाले लोग इतने ज़्यादा होते हैं नंबर में, लेकिन जो अनट्रेडिशनल होते हैं, जो नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, वो बहुत कम होते हैं। जैसे इस सीन में, इस पूरी पोएम के सीन में पोएट जो है
वो अकेला है, बिल्कुल अकेला. They tossed him the portrait from the tallest of buildings, and the sea devoured the canvas and the brush, as though his subject had decided to remain a prayer. They tossed him. उन्होंने फेंक दिया उसको, तस्वीरों को और उसके कैनवस को, उसके ब्रश को बिल्डिंग से, सबसे ऊंची बिल्डिंग से, और वो जाकर समंदर में गिर गई और समंदर ने उसको डिवोर कर लिया. अब अगेन ये बड़ा मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है. हमने पहले कहा कि ये पोएम एलेग्रिकल है और 2 ग्राउंड्स पे मूव करती है. तो हम बात कर रहे थे कि एक डीपर मीनिंग ये था कि नॉन ट्रेडिशनल लोग जो हैं, अगर वो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें करना चाहते हैं तो उनको बहुत बोल्ड होना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा बहादुर होना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा. लेकिन इस केस में, इस द पेंटर पोएम के केस में, पेंटर शायद वो करेज लैक करता है जो चेंज लाने के लिए या बहुत डायनामिक चीज़ें करने के लिए चाहिए होता है. तो उसके एंड में इसलिए क्या होता है कि वो खुद लाइफ के समंदर में गुम जाता है. हमने आपको बताया था ना कि समंदर जो है वो लाइफ और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है. तो वो उसमें गुम जाता है. और फिर होता क्या है, लास्ट लाइन में देखें पोएम की, एज दो हिज सब्जेक्ट हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ प्रेयर, कि उसके सब्जेक्ट ने खुद एक प्रेयर ही रहने को तरजीह दी. मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले स्टैंजा में भी जब वो कहता है कि समंदर उठ के आए और कैनवस पे खुद ही चिपक जाए, तो वहाँ पे भी वो पर्सनिफाई कर रहा था सी को. यहाँ पे भी वो कह रहा है कि सी ने खुद ही डिसाइड कर लिया उसके टॉपिक ने कि वो प्रेयर ही रहेगा, क्योंकि पेंटर जो है वो कैपेबल नहीं है क्रिटिसिज्म की वजह से, सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, लोगों के प्रेशर की वजह से इतने डायनामिक टॉपिक को पेंट करने के लिए. So that's all for today's video. Thanks.